नमस्कार दोस्तों। एओवे की इस सीरीज में जहाँ पे हम एओवे प्रत्याशियों से मतलब बात कर रहे हैं, इस सीरीज में आज हम हैं सौरभ वर्मा के साथ। वेलकम सौरभ। Thank you, राइट, Surya. आई एम एक्टिव रेसिडेंट ऑफ फ्लैट नंबर F042, स्टेइंग हियर फॉर द पास्ट 8-9 years। हम यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं हम उनसे आपको अवगत करा सकें, लाइक राइट। तो आइए हम थोड़ी मतलब बात करते हैं, रूबरू होते हैं सौरभ के साथ। राइट, एओवे के प्रत्याशी हैं आप सौरभ, राइट। अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, दैट विल हेल्प एवरीबडी टू नो यू अ लिटिल बेटर। या प्लीज। So, Surya, I'm Saurabh Verma. I live in Edge Tower. Flat number is 152. Uh, I live along with my wife and now 7-year-old son. So, 7 years old son, we moved along when my son was born, so newly born Beautiful. son, and I have seen him grow, and I've seen multiple phases of Gulshan Ikebana. वेरी नाइस। So, जैसे जैसे वो grow हुआ, I have seen society also getting evolved. राइट। Right? It was a good vibe. जब हम यहाँ पे आए ना, आप 2018-19 की बात कर रहे हैं? हाँ, 18 में। करेक्ट। And I have been living in this area for quite some time. ओके। पहले 137 में in Gulshan Vivante, and then we liked the vibe of Vivante also. Okay. And that is why we came here and we liked it. ओके। And when the kind of festivities and the kind of community bonding was there, it kind of clicked with us, and we stayed. And that time I used to work in a consulting firm in Gurgaon. Oh, nice. And my son was young. He also required care. And that traveling and commuting time, I could not get much chance to bond with people with the kind of friendship and acquaintances which we have developed now. I could Right. not do that in the first 2-3 years of my stay. Got it. Uh, but now, like I know many people. It's kind of a close knit family, राइट। right? And so professionally, I'm a civil engineer. राइट। I did my engineering from IT Bombay. Okay. And post that, I did management from IIM Indore. ओके। And I have been working as a management consultant, mainly focusing on developing strategies and implementing that for growth strategy as well as operational transformation also for the organizations. So I feel that is my key area of expertise. राइट। So I understand the processes and operations very well, and I can put the right systems and checks and balances to manage those operations. So I understand, and with the kind of the pedigree which you are coming and the kind of the corporate experience which you have, हम इसको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है क्योंकि शायद मेरे ख्याल से हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो जो 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 आपका प्रोफेशन और जो आपने एक्सपीरियंस बताया, आई बिलीव अगर आप उसको पूरा यहाँ पे लेकर के आते हैं तो आई एम श्योर दैट आप इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि वाइल दिस इज अबाउट हाउ यू स्पेंड योर टाइम इन Ikebana since 2018 and where you do work etc. Tell me something more about yourself कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, पैशन क्या है, मे बी इंक्लाइन मोर टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटल अफेयर्स एक्सेट्रा, ताकि लोग आपको थोड़ा सा और जान सकें। So, I'll tell you, I believe it. The person that you become as you grow old, Right. it lot depends on how have you been brought up, the family values. So all of us, and we have our Indian family system is such. Your grandparents, father, uncle, everybody actually you learn something from them. तो मेरे पिताजी भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मैं लखनऊ से हूँ और तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। Okay. कि वो हमेशा बोलते थे कि आप हमेशा कुछ कंट्रीब्यूट करके जाओ। Right. हमेशा हाथ आपका ऐसे नहीं ऐसे हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। वो बचपन से सिखाया है उन्होंने। तो एंड आई टेक प्राइड इन दैट। Absolutely, you should, तो जब से ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज ऑल्सो, तो मैं देखता था मैं और क्या कर सकता हूँ। अगर मैं हॉस्टल में भी रह रहा हूँ तो मैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। तो मैं अपने कॉलेज इंजीनियरिंग डेज में भी मैंने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली बहुत सी, फेस्टिवल्स की। आई वॉज मेस सेक्रेटरी Nice. ड्यूरिंग Okay. दैट टाइम। Okay. और जब मैं MBA में आया तो IIM Indore had a social service inclination. तो it was part of curriculum also, and तो काफ़ी हमें सोसाइटी में जा कर के क्या आप कर सकते हो, क्या सोशल एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी फोकस होता था। I understand. एंड दैट वाज द, जैसे मैं ग्रो हुआ वो बेस था, और वहाँ पे जो मुझे एनवायरनमेंट मिला, तो फिर आई टेल यू
I work for multiple NGOs, Okay. including Teach for India. Oh, nice. एंड और इंदौर के रीजन में Mhm. बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं Okay. and I worked along with them. I conceptualized and implemented, started a festival, social festival, Okay. which we used to call it Indian Bee School League. Okay. Identify all social issues and provide solutions to that. तो हमने उस समय पे काफ़ी NGOs के साथ में भी काम किया इंदौर में, जो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट में काम करते थे. Okay. और काफ़ी NGOs के साथ संपर्क में आया. उसमें एक डॉक्टर अभिषेक बनर्जी हुआ करते थे, वो IIT खड़गपुर से पास आउट थे, वो वहाँ पे रहते हैं. उन्होंने पूरा अपना कॉर्पोरेट जीवन छोड़ करके वो इंदौर में रह के वो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट में काम करते हैं. तो उनसे काफ़ी घनिष्ठता पड़ी, जाने. फिर उसके साथ में जाते हुए काफ़ी और NGOs के साथ में काम किया. विमेन हेल्थ एंड हाइजीन में हमने काफ़ी काम किया. Okay. पैडमैन के बारे में तो लोगों ने बाद में जाना, मूवी जाने के बाद में. मिस्टर मुरुगनंथन वाज द पर्सन हु कॉन्सेप्चुअलाइज्ड दिस. Oh. तो उनसे मैं पर्सनली बात किया, उनसे बात करके उनसे हमें पूरा प्रपोजल बनाया, बिकॉज फीमेल हाइजीन प्रैक्टिसेस वर वेरी मिजरेबल इन दैट ट्राइबल एरिया एंड दोज आर स्टिल आर. तो हमने एक फीमेल कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज था, उनके साथ टाइप किया. दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड. वी फाउंड द लाइक माइंडेड पीपल. वी एस्टैब्लिश्ड कि एक हम. तो क्या होता था कि ये जो मुरुगनंथम जी थे, पैडमैन एज ही इज नोन, तो एक पल्प, वुडन पल्प से एक मशीन बनाया. वुडन पल्प से पैड बनाते थे वो 1-1.5. तो देवर टू काइंड्स ऑफ मशीनरी, एक 1.5 लाख रुपए का और दूसरे का. तो हमने वो पूरा कॉन्सेप्चुलाइज करके वहाँ पे इंदौर, भोपाल में उसको सेटअप करवाने की बात की. एंड थ्रू दैट कॉलेज एंड दोज गर्ल्स वी थॉट हाउ वी कैन एक्चुअली स्ट्रीमलाइन एंड एक्चुअली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के विमेन का वो प्रोड्यूस करेंगे, उनका अर्निंग आएगा, फिर वी कैन sell it. So that's the kind of work I have done during my MBA days also. And post that I have been working mostly in the consulting and strategy domain. दैट इज सो ब्यूटीफुल. मतलब इनफैक्ट इस मतलब पॉडकास्ट के पहले या फिर अब जो भी कह लें, मैं आपको नहीं जानता था. दिस इज हैपनिंग मोर ऑफ एन इम्प्रॉम्प्टू थिंग दैट लाइक आई मीन वी आर टॉकिंग फॉर almost first time while we keep meeting at the bus stand, but that is more of a 2 minute 3 minute of a stall discussion which we had. आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि योर लाइफ इज सो इवेंटफुल टुवर्ड दिस सोशल कॉजेज कि मैं नहीं जानता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, राइट. अंडररेटेड बट क्वाइट डिपेंडेबल. दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से अबाउट all the things while not in the society basically but out of the society, and I'm sure that you can bring a lot of these experience to our काम society. होना चाहिए. People, we need go getters. ऐसा नहीं है कि डंका बजाना है. Right. हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी इश्यूज रहे हैं. कभी हम लोगों ने मिल करके सारे कुछ लोग वहाँ पे उसकी सफाई के लिए भी झाड़ू ला के काम किया है. Correct. और फिर कभी एक पार्किंग लॉट का इशू आया था, पूरा का पूरा पार्किंग का रास्ता ही बंद कर दिया था. Right. तो Right. वी हैड टू फाइट विद द बिल्डर Right. कि भाई ये तो पार्किंग थी नहीं, यहाँ पर आपने पार्किंग कैसे बना दी है. बिल्कुल. और उसके लिए जो एग्जिट का रास्ता था विच वाज लाइक आप 20-30 मिनट मीटर में चले जाते थे, आपको घूम के आपको 100, 150, 200 मीटर का रास्ता लेके जाना पड़ रहा था, विच वाज इम्पैक्टिंग अराउंड 10-15% ऑफ द ऑल द Families, फ्लैट्स. yes, yes. Right. So now that has been resolved. So those were many of the things which we have done. Correct. Let's राइट, डेफिनेटली. सो आपने मतलब बहुत सारी चीज़ों का आंसर कर दिया जो कि मतलब मैंने लिखा हुआ था. आइडियोलॉजी, पैशन, पास्ट सोशल एक्सपीरियंस, सम बिट ऑफ आई मीन विजन. अगर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें विजन पे, राइट, कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ विजन, व्हाट इज दोज थिंग्स विच शुड हैपन इन द नेक्स्ट 6 months to 12 months, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सोसाइटी में 6 से 12 महीने में. और जो आपका ये विजन डॉक्यूमेंट है उसमें से कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो कि आप मतलब पिक करना चाहेंगे जिससे कि आपको लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोसाइटी के लिए? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस. तो देखो, फर्स्ट EOA बन रही है. हम पिछले काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि EOA बने. हमने घर लिया है, तो वी एज ए रेसिडेंट वी वांट टू मैनेज द सोसाइटी द वे वी वांट इट. एब्सोल्युटली. और आप देखिए कि जो हमारे फ्लैट ओनर्स हैं, काफ़ी बहुत से यंगस्टर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. दे आर बिजी इन देयर डे टू डे लाइफ, राइट. दे हैव इन्वेस्टेड देयर हार्ड एंड मनी, बट उसको मैनेज करने वाला एक बिल्डर है. वो उसके भी अपने फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, अपने बिजनेस इंटरेस्ट है, वो अपनी तरह से रन करेगा. बट सेम पैसा अगर AOA के पास रहे, वी कैन डू इट द जॉब मच एफिशिएंटली एंड मच इफेक्टिवली. तो अब
क्योंकि अब ये फर्स्ट एओए में बिल्डर से एओए को ट्रांसफर करना है, तो दैट प्रोसेस हैज टू बी रन स्मूथली, राइट? ऑल द राइट्स ऑफ ओनर्स दोज नीड टू बी रिजर्व, राइट? वो प्रिजर्व करने हैं हमें। सेकंड, first AOA will be the one which will set the right systems and processes in place, not just for the current tenure of this AOA or the but for the years to come. So even if there would be certain initiatives and processes which we will take, we will complete also. There would be a few, at least we can sow the seed at this point of time. So हम नर्चर कर पाएंगे उसको। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने मतलब मैनेजमेंट कोर्स भी किया, तो आपने टेक्निकलिटीज़ ही नहीं सीखी है, आपने इसमें मतलब मैनेजमेंट भी सीखा है, जो कि अभी आपका काम है, वो भी दर्शाता है। सिविल इंजीनियरिंग के कौन से एस्पेक्ट हैं जो आपको लगता है कि आप अपने स्किल और एक्सपर्टाइज इस सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं? मुझे जो लगता है ड्रेनेज का इशू यहाँ पे बहुत बड़ा है, स्ट्रक्चरल ऑडिट कभी भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, लिफ्ट का ऑडिट कब हुआ ही नहीं हुआ है वो मुझे नहीं पता। दीज आर लिमिटेड क्वेश्चन विच एनी कॉमन पर्सन हैज, राइट? आपको क्या लगता है कि हाउ कैन यू यूज योर एक्सपर्टाइज इन दिस डायरेक्शन? सूर्या, तो ये क्वेश्चन आपने पूछा, इट्स रिलेवेंट, एक्चुअली वेरी रिलेवेंट। और मैं जब अपने आंसर्स थोड़ा तो प्रिपेयर किया ही था मैं इस पॉडकास्ट के लिए, आई एडमिट, बट आप ये जो पूछ रहे हो इसका मुझे अभी याद है कि मैंने क्या क्या कर रखा है अभी पास्ट में। तो जब मैं इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया, दैट वाज इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ओके। तो माय रोल वाज इन एडमिन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। सो आई वाज पोस्टेड इन headquarters of Bharat Petroleum in Mumbai, and in the entire western region, including Maharashtra, Gujarat, MP was also part of it, Goa. तो यहाँ पे जितने भी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस थे एंड ऑल द गेस्ट हाउसेस एंड ऑफिसेस, उनका जब भी कुछ रेनोवेशन होता था, राइट, इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट our team used to take care of it. Oh, nice. Right? Nice. So that time, and there were many old facilities also and new ones also. तो उसका पूरा मेंटेनेंस करना, so that experience I have. Okay. Right? How to take care of, let's say, maintenance issues. So of course there were multiple tiers of residential premises. For junior level, entry level officers were different. For senior management they were different, who used to live, let's say, within Nepean Road and Kolaba. So there the turnaround used to be very sensitive. Yeah. So in those areas also I worked. And second, there was a very interesting case of we have a big setup, our data center and big IT ERP center in Siveri in Mumbai. Many of you who are from Mumbai, they would know it's actually a relatively low-lying area, harbour area. We had a perennial problem of water logging in that. So it's a big facility जिसमें हमारे internal roads हैं, drainages हैं. I don't have those ready videos and images, तो उसका पूरा road खराब हो गया था. उसमें बारिश के समय में पूरा भारी पानी भर जाता था. तो I was given charge of that project to revamp that infrastructure. Of course, there was a manager also who was working on that. But on site, I was the person. So we coordinate with the Mumbai Port Trust, and because that area was there, so MCGM, Municipal Corporation of Greater Mumbai, to study the sea data also. When does the high tide happen? What would be the water level? And we took the water level and drainage. We mapped the entire drainage infrastructure in that locality. Interesting. And we synced our drainage system with that. So we revamped the entire drainage of this. और समंदर में इतने बड़े problem solve कर लिए, I believe एक माना का आप solve कर सकते हैं. Yes, and it would require some bit of coordination with the government agencies also. Yeah, I understand. Right? I agree. So our internal infrastructure has to be studied, how robust it is, how well designed it is, right? And how we can upkeep that. And second, we will have to bring the team to, and all of us can coordinate with the government agencies also. Right. ठीक है. Perfect. I think that you bring a lot of rich experience basically, which can add a lot of value to the Indian society. Right. I mean, this is one. Knowing you is getting more exciting, but हम ये बहुत लंबा podcast नहीं रख सकते हैं. One last question, that you have a full-time employment. I believe it's a 5 days working for you, right? How would you be able to manage? How do you so like there are a lot of questions basically कि जो यहाँ पर full time employment में है वो में मतलब manage नहीं कर सकते हैं. But अभी मैं पूरी list देख रहा था, maximum लोग full time employment वाले ही हैं, right?
आप कैसे मैनेज कर पाओगे, मतलब व्हाट आर योर स्ट्रेटजी सो दैट आई मीन यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स हियर? एक इंटरव्यूज में जब नौकरी के लिए हम जाते हैं ना, तो पहले एक एचआर हमें प्रिपेयर करता था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो मेरी एक वीकनेस हुआ करती थी कि मैं काम डेलीगेट नहीं कर पाता था। ओके, डेलीगेट करके करवा पाना, और वो लगभग 2 डिकेड्स हो गए हैं, 2 दशक हो गए काम करते हुए। बड़े प्रोजेक्ट्स, साइड प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं कंस्ट्रक्शन वाले, स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स भी किए हैं इन विच। तो आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप यू वर्क विद लेट्स से ठेकेदार्स और उनके वर्कर्स के साथ में, फिर आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, टाइमलाइन भी मेंटेन करनी है, बजट भी मेंटेन करना है। आप जब स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के साथ में काम करते हो, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, ही इज डेवलपिंग गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी फॉर दिस हिज न्यू प्रोडक्ट, somebody was working because it's a race to go to the market, right? You design and launch the new entire product which suits and caters to the customer's need, and you go to the market as fast as possible. तो उस समय आप कंसल्टेंट्स के साथ में काम करते हो, who are very relatively smarter than usually those in construction project, where people who are working at the ground. So I have managed both those kind of teams. got it. Right? And not just one project. I was leading the entire region and consulting practice in entire NCR region. So I used to manage the entire multiple projects at the same time. So I know how to manage things, Got it. how to delegate and get things done in a time-bound fashion, right? What systems need to be in place to manage what has to be done, and how, whether it is being done or not. आपका कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी क्लियर कि सामने को आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है। और आपने ऐसा नहीं कि आपने पॉडकास्ट कर दिया, बता दिया, सामने वाले को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कम्युनिकेशन इज हैपेंस व्हेन सामने वाला समझ भी जाए ना। बिल्कुल। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैट आई हैव लर्नड एज अ प्रोफेशनल। एंड सेकंड, आई हैव बीन डूइंग दिस, इट्स अ 5-day वर्किंग जॉब, राइट? ऑफ कोर्स देयर आर ऑफ professional commitment 9 to 5, but I can manage my time on it. When on weekends also I am available, during the weekdays also I can take out time. Definitely. Saurabh, I think that your profile is very strong. Before this podcast मैं आपको भी काफी कम जानता था, मगर आपको और जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप जो एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। यू बीइंग अ सिविल इंजीनियर, यू बीइंग लेकिन वर्किंग इन मैनेजमेंट फील्ड, और जो आपका रिच एक्सपीरियंस है सिर्फ टेक्नोलॉजी और सिविल इंफ्रा में नहीं, आपने काफी सारे सोशल कॉजेज में भी काम किया है। आई बिलीव, and just to add to it, I believe that is one aspect which I should add. In my recent role, I have worked on the digital transformation in a construction project. So in construction industry, which has been conventionally not very tech savvy, right? तो वहाँ पर I feel tech is going to play a very important role. I understand. और जिस तरह से हमारी सोसाइटी में हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, कि क्लब किसने बुक किया, अवेलेबल है कि नहीं, Correct. कब बुक हुआ कि नहीं हुआ, कितना Correct. पैसा उससे आ रहा है। करेक्ट। और हम मेंटेनेंस टिकट कॉमन एरिया में किसी ने एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, गंदगी दिख रही है, कुछ टूटा हुआ है, मैंने भी उसका मेंटेनेंस टिकट डाला हुआ है, किसी दूसरे ने भी डाला हुआ है, वो रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सेम सिंगल पर्सन को पता चलता है। उसको पब्लिक करो ना भाई, बिल्कुल, सबको दिखे वो। बिल्कुल। अब एएमसी है, सभी एएमसी हो गए हैं, एएमसी का क्या स्टेटस है, इसकी वारंटी कब एक्सपायर हो गई है, ये सब भी पता चले। एवरीथिंग हैज टू बी मेड डिजिटल एंड पब्लिकली अवेलेबल। I absolutely understand. जो अभी हमारा maximum tech adoption है, that is basically MyGate, but your thought process is much more than that कि हम tech adoption को और कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो on tech adoption, on civil work which you have done, on the social things which you have done, I believe that your vision is absolutely clear. I find you to be one of the fittest candidate for this. All the very best, Saurabh. Thank you very much. so much. Podcast देखने के लिए. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you so much.